کہ مسلمان یہاں پر سیف ہیں، لیکن جو ہمیں دکھتا ہے سوشل میڈیا پر وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک بلاول از رائٹ. اچھا ڈونٹ یو تھنک سو کہ دونوں کنٹریز کا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف انڈیا کا، پاکستان اور انڈیا دونوں کا سوشل میڈیا اور دونوں کے پالیٹکس بہت میجر رول پلے کرتے ہیں عوام کے ذہنوں میں جو ہے نا غلط چیزیں پورٹرے کرنے میں اور غلط چیزیں بھرنے میں، کیونکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ووٹس ایک ہی بات پہ ملتے ہیں کہ ہم پاکستان کو برا کہتے ہیں اور وہ لوگ ہم انڈیا کو برا کہتے ہیں اور وہ لوگ پاکستان کو. تو ان چیزوں کو اب ہمیں چینج کرنے کی اور بدلنے کی ضرورت ہے. میرے خیال سے تو بالکل نہیں ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ حرکتیں بھی ایسے ہیں بندہ مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے. لیکن جب آپ حرکتیں فار ایگزامپل مطلب جیسے انہوں نے کشمیر میں پچھلے دنوں کیا، پھر اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہونا، پاکستان اور بھارت کی جڑپ لازمی ہوتی ہے. کہ جو مودی ہے وہ مسلمانوں پر کافی ظلم کر رہا ہے. ہمیں کافی سوشل میڈیا پر کافی ویڈیوز آتی ہیں ہندوستان میں جو ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ان کی مسجدوں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں اپنی بات کے اوپر بالکل صحیح ہے کہ یہ سب سچ ہے، مسلمان کو ظلم ہو رہا ہے. سر پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ وہاں مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے مان لیا ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہاں مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن کیا بینگ اے پرسن یا بینگ اے ہیومن ہم لوگ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اس چیز پہ کہ وی آر مسلمس؟ کیا بینگ اے مسلم اگر ہم لے لیں تو کسی بھی انسان کو انسلٹ کرنا کسی دوسرے ملک میں جا کے، کیا یہ صحیح ہے؟ جب کسی بھی ایشو سے آپ نے توجہ ہٹانی ہو، کچھ آپ ڈاؤن دا ارتھ جا رہے ہوں یا کچھ چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ اس طرح کی کوئی نہ کوئی چول مارتے ہیں. سیریس کہوں گا، آپ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ وہ آپ کا ہائی لائٹس میں آ جائے، کچھ نہ کچھ ایسی آپ بات کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس کے دوسرے خود کو ٹرینڈ میں لانے کے لیے آپ ایسی چیزیں لانے کے لیے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، اور دوسرے مین چیزوں کے اوپر سے آپ توجہ ہٹانے کے لیے اس کی ساری توجہ آپ دوسری طرف مرکوز کر رہے ہیں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال ویورز، آئی ایم ناز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا. جی ویورز، آج ہم لوگ یہاں موجود پاکستان عوام سے جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو صاحب کا بیان یو ایس اے میں کانفرنس میں یہ سننے میں آیا ہے، بہت ساری ٹویٹس بھی اس بارے میں چل رہی ہیں کہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی جس میں یہ کہا کہ اسامہ بن لادن از ڈیڈ بٹ بچر آف گجرات از اسٹل الائیو، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پی ایم مودی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کشمیریوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کرنے والا ظالم آج بھی زندہ ہے، جس کو پی ایم مودی کہتے ہیں. اس بارے میں پاکستانی عوام کیا رائے رکھتی ہے؟ کیا انٹرنیشنل فورم پہ کسی بھی کنٹری کے منسٹر یا پھر پرائم منسٹر کے بارے میں ایسی بات کہنا صحیح ہے یا غلط؟ یہ جانتے ہیں ان سے اس بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہے، نیچے بتا سکتے ہیں کامنٹ سیکشن میں. ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ عادل بشیر. عادل بشیر صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک نیوز آئی ہے، پاکستان کے فارن منسٹر بلاول بھٹو جی نے یو ایس اے کے اندر ایک بیان ریکارڈ کروایا، ایک بہت بڑی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ کہا کہ بے شک اسامہ بن لادن وفات پا چکے ہیں، مگر دوسری جانب گجرات میں آج بھی ایک کسائی زندہ ہے، اور پوائنٹ آؤٹ کیا انہوں نے پی ایم مودی جی کو. ان کا اشارہ شاید اس جانب تھا کہ وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم اور جو پرسپیکٹوز بنائے ہوئے ہیں اس سب کی طرف تھا. مجھے بتائیں انٹرنیشنل فورم میں بیٹھ کے کسی بھی کنٹری کے آنریبل پی ایم کے بارے میں ایسی بات بولنا کیا صحیح ہے؟ کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا میرے خیال سے تو بالکل نہیں ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ ان کی کچھ حرکتیں بھی ایسے ہیں بندہ مجبور ہو جاتا ہے کرنے کے لیے. لیکن جب آپ حرکتیں فار ایگزامپل مطلب جیسے انہوں نے کشمیر میں پچھلے دنوں کیا، پھر اس کے بعد جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ایل او سی کے اوپر فائرنگ ہونا، پاکستان اور بھارت کی جڑپ لازمی ہوتی ہے آپ کا ایل او سی کے اوپر. اب دوبارہ اگر الیکشن ہوں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا. پھر وہاں پہ مسلمانوں کے حقوق اس طرح سے چھیننا، حالانکہ کانگریس کی بھی گورنمنٹ رہی ہے، بٹ نریندر مودی کی گورنمنٹ میں شاید آئی تھنک انہوں نے کوئی ذاتی سر آپ کی تھوڑی سی بات ٹوکتی چلوں، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ نے یہاں پہ کہا کہ پی ایم مودی کی جو ذاتی دشمنی ہے مسلمانوں کے ساتھ اور وہاں پہ ظلم کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم، اسی بات کو کوٹ کرتے ہوئے آپ کا جواب دوں کہ وہاں کے مسلمانوں نے بلاول بھٹو صاحب کی بات کا جواب دیا اور یہ کہا کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ ہمارے پی ایم کے بارے میں ایسی بات کہیں، وہ ہمارے لیے بہت ریسپیکٹیبل ہے اور ہم ان کی بہت زیادہ عزت اور قدر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ بہت اچھا انسان ہے، تو کائنڈلی آپ لوگ اپنا ملک سنبھالیں. تو آپ وہاں کے مسلمانوں کا یہ بیان تھا، کیا کہیں گے اس پر؟ نہیں، ان کا بیان ایسا دینا میرے خیال سے بالکل ٹھیک ہے، اور اس چیز کا کہ بلاول بھٹو کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسے اس فورن کے اوپر، اور وہ جب آپ کسی ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور ایسا بیان دیں، میرے خیال سے بہت غلط بات ہے.
ये बहुत गलत किया। हाँ, वो लोग बिल्कुल उसके हक में कहेंगे, बिलावल भुट्टो को से इख्तलाफ करेंगे, जो मर्जी है, उनकी अपने मुल्क के साथ मोहब्बत तो है। अब हम अगर जनरली बात कर लें, हमारे सिंध की तरफ काफ़ी हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्या वो इंडिया को अच्छा समझते हैं? नहीं समझते, क्योंकि वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ उनकी मोहब्बत है। जैसे हमारा वो प्लेयर भी था दानिश। सर जब उन लोगों को अपने घरों से प्यार है, उनको इंडिया से प्यार है, वो वहाँ पे रहना चाहते हैं, मूव नहीं करना चाहते, वहाँ पे होने वाली डेवलपमेंट और ग्रोथ को वो लोग खुद एंजॉय कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को फैसिलिटीज समझते हैं, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, तो हम किस चीज़ की दुश्मनी जो है और इख्तलाफात अपने दिमागों में लेके आज भी जो है हर प्लेटफॉर्म पे आके नफरत फैलाते हैं, और फिर बाद में हम लोग दहशतगर्दी के नाम से मशहूर होकर हमें बुरा लग जाता है। हम सिर्फ अपनी सियासत को चमका रहे हैं। अगर मैं जनरली यहाँ पे बात करूँ, इस वक्त जो दुश्मनी है ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर की है, ना दूसरी चीज़ों की है। हमारी जो इस वक्त है वो अपने एक सियासी एजेंडे दिखाने की। इंडिया में तो इस वक्त भी 70% जो हिंदू है वो इसी चीज़ के ऊपर वोट देते हैं कि आप पाकिस्तान को वो बुरा भला करें। ये नरेंद्र मोदी का, मैंने जैसे पहले ही बात की, जैसे ही इलेक्शन होंगे हमारे एलओसी के ऊपर क्या होता है? सर पाकिस्तान में भी तो इलेक्शन और वोट इसी बिहाफ पे किए जाते हैं और वोट मिलते हैं जब आप इंडिया को गंदा करते हो, जब आप इंडिया के अगेंस्ट बोलते हो, जब आप इंडिया के बारे में खिलाफ उसकी बातें करते हो, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स को डाउनफॉल करते हो और कहते हो कि आने वाले टाइम में हम कश्मीर आज़ाद करा लेंगे, हम इंडिया को गिरा देंगे, हम उन पर भारी हो जाएंगे। इन सारी बातों पर ही पाकिस्तान में वोट नहीं मिलते। आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मैं अगर एग्री, हमारे पाकिस्तान में काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर मैं एग्री नहीं फिर मुझे करूंगा। आप एग्री नहीं करते, फिर मुझे बताएं ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि बिलावल भुट्टो जी को इंटरनेशनल फोरम पे जाके ये बात कहनी पड़ी जो कि बिल्कुल किसी के अगेंस्ट जा रही थी? अब आप अंदाज़ा लगाएं, जो हमारे कौम का माइंड सेट है ना, वो थोड़ा सा ना हट के है। जब किसी भी इशू से आपने तवज्जो हटानी हो, कुछ आप डाउन द अर्थ जा रहे हों, या कुछ चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो रही हों, तो फिर आप इस तरह की कोई ना कोई चवल मारते हैं। सीरियस कहूँगा, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपका हाइलाइट्स में आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसी आप बात कर देते हैं कि आपको उसके दूसरे खुद को ट्रेंड में लाने के लिए आप ट्रेंड ऐसी में लाने के लिए आप ऐसी बातें कर, और दूसरे मेन चीज़ों के ऊपर से आप तवज्जो हटाने के लिए उसकी सारी तवज्जो आप दूसरी तरफ मरकूज कर और देते हैं। सर एक ऐसा बंदा जाके वहाँ पे ये बात कह रहा है और एक ऐसे बंदे को कह रहा है जो अपनी कंट्री में इतनी ज्यादा तरक्की कर रहा है, और कहने वाला देखें जो खुद पाकिस्तान में रहते हुए अपनी स्पीचेस में उनकी कांपें टांग रही होती हैं, वो बंदा इंटरनेशनल लेवल पे जाके एक ऐसे पीएम को ये बात कह रहा है जिस बंदे ने, अगर बात करूँ 2022 के अंदर आप इंडिया और कश्मीर के अंदर देखें कितनी डेवलपमेंट की है। अगर ऑन अनदर हैंड साइड पाकिस्तान की बात करूँ तो आफ्टर 95 या 97 देख लें, इन 25 सालों में पाकिस्तान की डेवलपमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, उसके अलावा इलिटरेसी आपके सामने है कि वो रेशो कहाँ से कहाँ आ गया। हाँ, नहीं, मैं इस बात को तो आपसे मानता हूँ कि इंडिया ने नो डाउट काफ़ी तरक्की की है मोदी की हुकूमत में ही 10 सालों में। अब तो वो टॉप 5 में एज ए इकोनॉमिक के लिहाज से टॉप 5 में आ टॉप गया, 3 में, टॉप 3 में आ गया। मैंने पहले देखा तो टॉप 5 में था। टॉप 3 में। अब आप इसी चीज़ का अंदाज़ा लगा ले, 3-4 माह पहले की रिपोर्ट में वो टॉप 5 में थे, अब टॉप 3 में आ गए। वो अपने मुल्क के लिए सर्व तो कर रहे हैं। वो कम से कम जो मर्जी करे, जिस तरह कसाई है, जो कुछ मर्जी है, लेकिन वो अपनी कौम के साथ खड़ा हुआ है। वो अपनी कौम के जो बेनिफिट है या अपनी कौम का जो मफाद है उनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा। ऑन दी अदर हैंड, मैं अभी अगर बात करूं, हमारे क्या हो रहा है, मफाद की, अभी भी मफाद की जंग हो रही है। कल वो इमरान खान ने कहा है कि पंजाब और KPK की असम्बलियाँ तहवील होंगी, साथ ही उधर से वो आ गया कि हम जी वो तहरीक अदम एतमाद। मुझे बताएं, जब से ये तहरीक अदम एतमाद आई है उस वक़्त से लेके अब तक कोई भी पार्टी है उसने कौन से मसले के ऊपर जो कौम का मसला वो बात की है? सर कौम का मसला छोड़ें, इन्होंने अगर उनको एक जो है ना कसाई से तशबीह दी, तो मुझे बताएं क्या कसाई वही है जो हमें मीडिया पे नजर आ रहा होता है कि वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसे कसाई कम है? आपके सामने है कि कितनी बड़ी फहरिस्त है। वो लंबी फरिश्त है। मैं अब इसके ऊपर क्या बात करूं कि वो आदमी कह रहा है जिसको अपनी कौमी ज़बान नहीं बोलनी आती। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको मेरे ख्याल से पाकिस्तान की रवायात, सकाफत, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होगा। उसने तो अपनी जो ज़िंदगी है वो वैसे ही बाहर गुजारी है, तो वो इस तरह के बयान देना मेरे ख्याल से बहुत नाज़ेब। फिर इस वक्त जब आपका मुल्क बहुत सारी मुश्किलात में, बहुत सारे इंतशार में और बहुत सारी चीज़ों में बिखरा हुआ,
आपको समझ नहीं आ रही हो कि आप उसे समेटे किस तरह। हम पहले ही कई बार टूट चुके हैं, कई बार बिखर चुके हैं। मुझे आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं हम इस वक्त भी कितनी चीज़ों के अंदर डिवाइड हो चुके हैं। और अभी कौन सा हम जुड़े हुए हैं, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में लैग कर रहे हैं, अभी भी हम बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, जिन पे अगर हम उनकी डेवलपमेंट पे फोकस करें ना, तो शायद हम ये जो एक दूसरे को लेन देन है जवाबों की और एक दूसरे पे सवाल कसने की, बातें कसने की, हम इससे बाहर निकल के हम भी किसी दुनिया के अच्छे प्लेटफॉर्म पे सामने आ सकते हैं, नज़र आ सकते हैं, खुद को साबित करवा सकते हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों की फिक्र ही नहीं है, हम एक ही बात में लगे हुए हैं कि हमने गंदा किसको करना है, ब्लेम गेम किसके साथ खेलनी है। नहीं, मैं इस बात के ऊपर तो आऊँगा कि अगर आपकी सिर्फ इन दो ममालिक के अंदर ट्रेड होनी स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तो आपका बहुत हद तक आपकी इकनॉमी को दोनों की स्टेबल होगी, फिर आपकी गुर्बत में भी काफ़ी हद तक कमी आएगी। मैं ये अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो चीज़ें हमें समंदर पार से मंगवानी पड़ रही है, या अगर कोई चंद चीज़ें हम बेच भी रहे हैं उन्हें समंदर पार भेजना पड़ रहा है, लेकिन हम जो बिल्कुल हमारे साथ है उससे वहीं नहीं सेल कर पा रहे, तो हम बरास्ता कोई और ममालिक हम मंगवाते हैं, हमें जो टैक्सेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक्सपेंस, वो सारी चीज़ें हम झेलते हैं, बजाय इसके कि हम अपनी इगोइस्टिक सोच को साइड पे रख के और डायरेक्ट ट्रेड कर लें, वो हमसे गवारा नहीं है। मगर हमें दूसरों पे जो है ना आवाज़ भी कसनी है, ब्लेम गेम भी खेलनी है, खुद को कुछ नहीं कहना। हाँ, ये अब ये देखे ना कि पिछले दिनों एक ही स्टेप हुआ था, वो गुरु नानक वाला पीटीआई के दौर में। मैं उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लोग तो कहते हैं कि अमन का पैगाम दिया, ये दिया, फलां किया, लेकिन मैं इसे एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ कि वो जो इन्होंने सिखों को आने की इजाज़त दी, वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं, वही जगह जो पहले बिल्कुल फ्री थी, फारग थी, कोई नहीं जा रहा था, अब वहाँ पे सिख आने शुरू हो गए। वहाँ पे आपकी बहुत सारी चीज़ें सेल होनी शुरू होगी, आपकी पाकिस्तान की ही बनी हुई। फिर आप इस चीज़ का भी अंदाज़ा लगाएं, वहाँ पे जो सिख यात्री आ रहे हैं उनका कोई आई थिंक कोई टोकन वगैरह भी रखा हुआ, वो भी आपकी अर्निंग हो रही है। मेरे ख्याल से इकोनॉमिक वाइज वो एक और बहुत अच्छा उससे सर उससे टूरिस्ट रेट में भी, उस रेशो में भी काफ़ी हद तक डिफरेंस आया है। लोगों को, बाहर के ममालिक में मौजूद लोगों को वो चीज़ पता चली है, वहाँ पे जो चीज़ें कभी हमारे यहाँ दिखाई नहीं गई उनको वो देखने को मिली हैं उन लोगों के थ्रू। खैर, मैंने उनको भी कवर किया था अपने चैनल पे। मुझे बताएं कि ये सारे सिनेरियोज आपके सामने आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान डेवलपमेंट चाहता है, पाकिस्तान ग्रोथ चाहता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करने की ज़रूरत है, अदर देन दिस ऑल स्टफ, ब्लेम गेम और पॉलिटिक्स? खुद पे काम करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जी ने यूएसए के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बयान दिया कि बेशक उसामा बिन लादेन इंतकाल कर गए हैं, मगर बुचर ऑफ गुजरात स्टिल अलाइव, जो कि अब बुचर ऑफ कश्मीर बन चुका है। क्या कहेंगे आप उनकी इस स्टेटमेंट पे? उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। देखें, जो कश्मीर के हालात हैं वो तो सारी दुनिया के सामने हैं, और ही इज़ क्वाइट राइट इन हिज स्टेटमेंट के जो मोदी है वो मुसलमानों पर काफ़ी जुल्म कर रहा है। हमें काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस आती हैं हिंदुस्तान में जो हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, उनकी मस्जिदों पर, ये सब कुछ हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी बात के ऊपर बिल्कुल सही है कि ये सब सच है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। सर, पहली बात तो ये कि आपने कहा कि वहाँ मुसलमानों पे ये हो रहा है, ठीक है, मान लिया एक सेकंड के लिए कि वहाँ मुसलमानों पे ये हो रहा है, लेकिन क्या बीइंग अ पर्सन या बीइंग अ ह्यूमन हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं इस चीज़ पे कि वी आर मुस्लिम्स? क्या बीइंग अ मुस्लिम अगर हम ले लें तो किसी भी इंसान को इंसल्ट करना किसी दूसरे मुल्क में जाके, क्या ये सही है? अगर बिलावल ने ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर कही है, अगर उसने सिर्फ अपना शक जाहिर किया तो हम ये नहीं कह सकते कि उसे इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि शक जाहिर करना तो हर इंसान का हक होता है। बिलावल सर, अगर इस बात में आपको मैंने जो स्टेटमेंट रखी एग्जैक्ट उनके यही वर्ड्स थे कि उसामा बिन लादेन इज डेड बट बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव व्हिच इज नाउ अ बुचर ऑफ कश्मीर। तो एग्जैक्ट इन वर्ड्स में आप मुझे बताएं, आप अपने पर्सपेक्टिव रखें सामने कि आपको क्या लगता है, शक जाहिर करना है या श्योरिटी के साथ बोला उन्होंने? क्योंकि ये सियासी मामला है और वो इंटरनल अफेयर से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो मे बी, और जो हम देखते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं, वो सही कह रहे हैं। मोदी इंडिया के ऊपर वो जितने भी, वैसे तो स्टेटमेंट ऑफिशियली वही देते हैं कि मुसलमान यहाँ पर सेफ़ हैं, लेकिन जो हमें दिखता है सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल डिफरेंट होता है।
तो आई थिंक बिलावल इज राइट. अच्छा, डोंट यू थिंक सो कि दोनों कंट्रीज का, मैंने ये नहीं कह रही कि सिर्फ इंडिया का, पाकिस्तान और इंडिया दोनों का सोशल मीडिया और दोनों के पॉलिटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं अवाम के जहनों में जो है ना गलत चीज़ें पोर्ट्रे करने में और गलत चीज़ें भरने में, क्योंकि यहाँ और वहाँ दोनों जगह वोट्स एक ही बात पे मिलते हैं कि हम पाकिस्तान को बुरा कहते हैं और वो लोग हम इंडिया को बुरा कहते हैं और वो लोग पाकिस्तान को. तो इन चीज़ों को अब हमें चेंज करने की और बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं भी वहाँ पे अगर होता कम है दिखाया ज़्यादा जाता है. मेजॉरिटी ऑलवेज हैज़ अथॉरिटी. आपको पता है वहाँ कितने ज़्यादा मेजॉरिटी में मुस्लिम्स रहते हैं, इतने ज़्यादा मुसलमानों पे अगर जुल्म हो रहा है तो मुझे बताएं वहाँ के मुसलमानों ने ही इस बात का जवाब दिया है कि हमें अपने पीएम के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना, हमारे लिए ही इज़ अ वेरी काइंड मैन, और पाकिस्तानियों को कहो कि अपने मुल्क पे फोकस करें, हमें डिक्टेट मत करें. ये वहाँ के मुसलमानों का इन रिटर्न बयान आया आफ्टर बिलावल भुट्टो. अब इस पर अगर उन्होंने खुद बयान दे दिया मुसलमानों ने, तो इस पर अब सर ये एक बयान नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने वहाँ से वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजी जिसके अंदर वहाँ के मुस्लिम्स ये चीज़ बता रहे हैं कि यार हम यहाँ पे बहुत खुश हैं. आस्क पाकिस्तान मुस्लिम्स के हम में ज़्यादा जो है ना फोकस मत करो, आप लोग अपने कंट्री पे ध्यान दो. हम लोग पाकिस्तान कभी भी आना नहीं चाहते. या जैसे हम पाकिस्तान के, हम जानते हैं पाकिस्तान इस वक्त इस स्टेट में है और पॉलिटिकल इश्यूज़ ही यहाँ पर ख़त्म नहीं होते, ऊपर से ये बहुत से इश्यूज़ चलते हैं हमारे यहाँ पर, सफाई वगैरह वगैरह. तो उनका वो पाकिस्तान कौन आना चाहेगा. एक तो फॉरेन कंट्रीज़ के भी लोग यहाँ के काफ़ी, एक मुसलमान है तो मुसलमानों को एक शिद्दत पसंद समझा जाता है. पाकिस्तान के ये टेररिस्ट अटैक्स वगैरह के अंदर भी पाकिस्तान को काफ़ी इन्वॉल्व समझा जाता है, इसलिए वो नहीं आना चाहेंगे. बट इंडिया के जो मुसलमान अगर खुद ऑफिशियल ये बयान दे रहे हैं तो अब हम सर मेरी बात सुने, हर मुल्क में ना बहुत सारी पार्टीज होती हैं. जैसे यहाँ पे इमरान खान के अलग है, पीपल्स पार्टी देख लें आप, उसके अलावा नून लीग, मतलब बहुत सारी पार्टीज. इसी तरह इंडिया के अंदर भी बहुत सारी पार्टीज हैं. अगर कुछ पार्टीशन के अंदर या कुछ एक जगह पे, कुछ प्रोविंस या कहीं भी अगर स्टेट के अंदर ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो क्या हम उस एक चीज़ से डिफाइन तो नहीं कर सकते ना कि पूरा मुल्क ऐसा है. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे अगर एक दो लोग गलत निकले तो आज पूरा पाकिस्तान बदनाम है कि पूरा पाकिस्तान दहशतगर्द है. तो क्या है दहशतगर्द? नहीं ना. लेकिन हमारा सोशल मीडिया भी दिखाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द है. तो इसी तरह हमने उनका भी इमेज पोर्ट्रे कर लिया हुआ है. हम उस इमेज को लेके आज देखें ट्रेड नहीं कर रहे, अपना लॉस कर रहे हैं. हम गलत स्टेटमेंट्स देके दुनिया के सामने अपना नाम खराब करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी के सामने जाके बुराई करोगे ना तो कोई उसको गलत समझने से पहले आपको गलत समझेगा. इसका मतलब है कि जो सोशल मीडिया है हमारा, वो कर रहा है हमारी जो आवाम के अंदर जो गलत माइंडसेट जो बना रहा है, वो हमारा सोशल मीडिया है. सोशल मीडिया के ऊपर इंसानों को तहकीक करनी चाहिए कि जो वो देख रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, फिर ही कोई फ़ैसला करना चाहिए. और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि सिर्फ एक बंदे से हमें नहीं फ़ैसला करना चाहिए कि पूरा मिल्क ऐसा होगा. यस मे बी, पर इंडिया इज़ गुड फॉर मुस्लिम्स. आने वाले टाइम में पाकिस्तान अगर खुद पे फोकस करे तो क्या आप डेवलपमेंट कहीं देख रहे हो? या अभी तक तो जो आवाम की मतलब क्या इकदाम है जो पाकिस्तान कर सकता है फॉर डेवलपमेंट? द मेन थिंग जो है उनको डॉलर को कंट्रोल करना होगा. पाकिस्तान से कोई बाहर की कोई ऑफिशियल कंपनी नहीं है या ये बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करवाई जाती हैं. हमारा यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाता है, हम कुछ भी बेचते नहीं हैं बाहर. इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए अपनी डेवलपमेंट करनी होगी. हमारा जो सी पैक है उसको और ग्रो करना होगा. सर एक आपसे आखिरी सवाल पूछती चलूँ. बिलावल भुट्टो ने जो उनको कसाई कहा पीएम मोदी को, तो मुझे बताएं पाकिस्तान में क्या आपने कभी कसाई नहीं देखे, या पाकिस्तान में आपको पॉलिटिशियंस जो हैं वो क्या कसाईयों की फॉर्म में कभी नज़र नहीं आए? क्योंकि यहाँ पे भी गुर्बत का जो हाल चल रहा है ना, वो किसी कसाई से बुरा नहीं है. यस आप सही कह रही हैं, पर मोदी को बिलावल ने कसाई बोला. जी, मोदी को बिलावल ने कसाई बोला. किस लिहाज, मतलब उसको क्या कसाई इन सेंस कि वो कश्मीरियों पे बहुत जुल्म करते हैं और वहाँ खून बहाया जाता है, कत्लो गारत होती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से. जी ये हम जो भी कहते रहे, लेकिन अगर वहाँ के लोगों ने खुद ब खुद ये बयान दे दिया है आपके बकौल, तो वहाँ बात ख़त्म हो जाती है. उन्होंने बात ही ख़त्म कर दी कि हम यहाँ ठीक है, तो अब हम चाहे भी तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते. उन्होंने बात ख़त्म कर दिया और वो सही हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम जो देखते रहे 2-3 वीडियो से फ़ैसला नहीं कर सकते कि पूरा मुल्क ऐसा है. तो यस इंडिया इज़ गुड. ऐसा ये बहुत अच्छा लगा कि आपकी सोच इन सारी बातों को सुन के जान के थोड़ी सी चेंज हुई. थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपकी राय जान. ओके व्यूअर्स, एज यू गजब सिंह हमने लिए पाकिस्तानी अवाम की जवाबात और देखिए उनके रिएक्शन से उनको क्या लगता है बिलावल भुट्टो ने जो स्टेटमेंट दी है इंटरनेशनल लेवल पे आके, वो सही है या गलत. मेजॉरिटी का जवाब यही था कि किसी भी मिनिस्टर को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को ऐसी बात कहे. मगर अगर हम लोग रियलिटी की तरफ गौर करें तो शायद पाकिस्तान इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहा है कि हम लोग ब्लेम गेम से अभी तक बाहर नहीं आ पा रहे. चाहे बात सही हो या गलत, लेकिन किसी को इंसल्ट करने का
رائٹ کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی فورم پہ کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا مالک کیوں نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, اور فردر ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک, سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.